آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبریں تفصیل سے۔ حکومت کٹکٹ گیٹ کے ساکنان کے ساتھ کھڑی ہے اور یہاں کے ایک مکان کو بھی کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ تیقن BJP کے ریاستی سیکریٹری سنجے کینیکر نے دیا۔ وہ گزشتہ شام متعلقہ ایکشن کمیٹی کی جانب سے بلائی گئی میٹنگ سے مخاطب تھے۔ ناظرین، ایک طرف تو مرکزی حکومت بے گھر افراد کو اپنے خوابوں کا سائبان فراہم کروانے کی غرض سے پرائم منسٹر گھر کل اسکیم چلا رہی ہے، تو دوسری طرف ضلع انتظامیہ نے کٹکٹ گیٹ علاقے کے ساکنان کی یہ کہہ کر نیند حرام کر دی ہے کہ علاقے کی 22 ایکڑ سے زائد زمین اینیمی پراپرٹی ہے، اور انتظامیہ نے آنن فانن PR کارڈز اور 7/12 پر سے یہاں کے مکان مالکان کے نام بھی ہٹا دیے، جس کے سبب یہاں کے تقریباً 4,500 خاندان اضطراب میں مبتلا ہیں، اور انتظامیہ کی جانب سے ہونے والی کارروائیوں کے اندیشوں سے ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ دوسری طرف میڈیا والوں نے بھی جلتے پر تیل کا کام کیا اور یہ خبر پھیلا دی کہ اس معاملے کی عدالتوں میں بھی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، لہٰذا اپنے خون پسینے کی کمائی سے خریدے گئے پلاٹس اور مکانات کو بچانے کے لیے یہاں کے ساکنان نے بھاگ دوڑ شروع کر دی ہے۔ علاقے کے ساکنان نے ایک ایکشن کمیٹی تشکیل دی اور وکیلوں کے پینلز مقرر کیے تاکہ اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی جا سکے۔ کچھ ساکنان نے عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا اور میڈیا والوں کے غلط پروپیگنڈوں کی پول کھل گئی۔ فاضل عدالت نے درخواست گزاروں کو عبوری راحت فراہم کر دی ہے۔ گزشتہ شام اگلا لائحہ عمل تیار کرنے کی غرض سے ایکشن کمیٹی نے ایک میٹنگ طلب کی، جس میں BJP کے ریاستی سیکریٹری سنجے کینیکر اور ایسے الجھے معاملات کو سلجھانے میں ماہر کہلانے والے سوشل ورکر راجندر داتے پاٹل، عبدالرؤوف، سوشل ورکر شیخ سلیم عرف سلیم سہارا، BJP اقلیتی مورچہ کے ریاستی صدر اعجاز دیشمکھ، سینئر صحافی وقار احمد، آزاد یووا بریگیڈ کے مبین انصاری، انجینئر عبدالوحید اور دیگر نے حاضرین کی رہنمائی کی اور متاثرہ ساکنان کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سبھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ BJP کے ریاستی سیکریٹری سنجے کینیکر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جب تک متاثرین کو انصاف نہیں مل جاتا وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس معاملے کے حل کے لیے وہ وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ سے ملاقات کریں گے اور ضرورت پڑنے پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے بھی نمائندگی کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ سرکاری افسران ذہنی طور پر مریض ہوتے ہیں اور وہ خود نمائی کے لیے عوام کی بات حکومت تک نہیں پہنچاتے، بلکہ حکومت کو گمراہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے عوام کو یقین دلایا کہ حکومت کو گمراہ کرنے والے افسران کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا۔ اس میٹنگ میں شیخ وحید، مظفر اسلام، سید عتیق، سوشل ورکر صفی صدیقی، سید جاوید علی اور علاقے کے ساکنان بڑی تعداد میں شریک تھے۔ میں کٹکٹ گیٹ کے میرے سبھی مسلم بھائیوں کو، سبھی یہاں رہنے والے ناگرکوں کو یہی دلاسا دلانے آیا ہوں کہ یہ شہر جیسا دیکھے تو آپ کو ڈرایا گیا ہے پرشاسن سے۔ یہ چلو ایسے فیصلے ہوتے ہیں، یہ شہر میں یہ پہلا فیصلہ تھوڑی ہے۔ نظام کی زمین بول کے کھوکڑپورہ عجب نگر میں تریمورتی کالونی کا کیے، اس کو فیصلہ دیا گیا کہ یہ پوری کالونی خالی کیا جائے، تو پھر کالونی خالی کی ہے۔ 60% اس شہر کی بے قانونی رہواسی ایریا ہے گنٹے واری، آج رجسٹری بند کر دیا۔ کئی سالوں کے بعد آج رجسٹری بند کر رہے ہو۔ پھر جنہوں نے رجسٹری کیا گنٹے واری کی وہ قاعدے سے رہے، آپ گنٹے واری بھر کے لیتے ایک طرف اور دوسری طرف رجسٹری بند کرتے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی ہم اپنی سرکار ہے، یہ سرکار سوجھ بوجھ کے نرنے لینے والی ہے، ٹھیک ہے، طریقے سے اگر قاعدے سے حساب سے ہم کہیں کم گرے ہوں گے تو نشچت روپ سے سرکار اس میں بھر ڈالے گی اور یہ جو راحت دینے کا کام کریں گی یہ سرکار کرے گی، ابھی کی سرکار کرے گی۔ ارے یار، ہم کبوتر کو دانہ ڈالنے والے لوگ ہیں یار، کیا بات کرتے یار، چھوٹے چھوٹے چیٹی کو جگانے والے لوگ ہیں، انسان ہیں ہم، تو انسان ہیں، کیا بات کرتے۔ یہ راجنیتی کی باتیں کرنے والے یہ دھندا کرنا چاہتے اس ماحول کا، ہم ماحول کا دھندا نہیں کبھی ہونے دیں گے۔
इसलिए मैं आज आया हूँ। इस माहौल का किसी ने धंधा नहीं करना चाहिए और अपनी रोटी सेकना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं आज आया हूँ। मैं राजनीति बोलकर नहीं आया हूँ, मैं कोई पार्टी का झंडा लेकर यहाँ आया नहीं हूँ। हाँ, मैं सरकार में हूँ और सरकार को बता सकता हूँ, सरकार को मार्गदर्शन राह दे ये बोल सकता हूँ कि ये क्या करना चाहिए यहाँ, क्योंकि ये मेरा शहर है और मैं नेता हूँ यार एक पार्टी का। ये देखो, अगर पार्टी ने महसूल सरकार की एक बाजू सुन ली थी इसीलिए ये फैसला हुआ, अभी सेकंड बाजू सुन लिए इसलिए स्टेटस को मिला। सेकंड बाजू सुना ही नहीं था ना, पेश करने वाला ही कोई नहीं था। दोनों बाजू अगर प्रशासन पेश करेगा तो सही बाजू बताने वाला भी आदमी चाहिए। इसमें कोई प्रशासन ने, मेरे को बुरा क्या लगता है, कोई प्रशासन ने हिम्मत नहीं किया कि इसकी सही बाजू क्या है और कोर्ट में दरखास्त करना था। आज क्यों इन लोगों ने स्टेटस को लाया, कैसा दिया कोर्ट ने स्टेटस को? ये प्रशासन को मालूम रहता, प्रशासन ने अगर अच्छी तरह से पेश करते थे तो ये स्टेटस को पहले ही रहता था, पहले ही मिलता था, इस पे फैसला भी नहीं होता था कोर्ट का। मैंने सियासत हो रही है ऐसा नहीं बोला, सियासत के लिए इसका फायदा कोई ना ले, ये बताया मैंने। क्योंकि कैसा है, जब कोई रोता है, कोई अपना कुछ खोता है, अपना दिल का दर्द चुभता है, वहाँ कोई अगर मजबूरी का फ़ायदा लेता है तो अल्लाह ताला भी उसको माफ़ नहीं करता है। एक बात बोलता हूँ, ये छोटी मैच है, छोटी मैच के लिए अगर यहाँ के यहाँ निपट जाता है ठीक है, उतनी ताकत भी रखते ऊपर जाने की। शहर के लिए दिल्ली के तक भी हिला सकता हूँ। अरे मेरा शहर है, मेरे लोग हैं जिनके हाथों से सेवा हो रही है इस शहर की, और ये शहर की पूरी ताकत है। ऐसा नहीं है एक एक आदमी ये शहर का ताकत है, क्योंकि वो काम करके कमा के खाता है, और ये सही तरह से ये शहर की ताकत होने की वजह से राष्ट्र की ताकत है। ऐसा थोड़ी है तो हम कोई आदमी, हमको ये नहीं है, सब काम का है। सर आज और कटगट गेट कौम उसकी है, जो काम का है उसी के काम का है, उसी के कौम है। कुछ अधिकारी मानसिक दृष्टि से अपंग रहते हैं, अब मैं उसको क्या बताऊं। वो अपना बड़प्पन किसी को बताने में भूल जाते, वो इंसानियत भी, कि मैं कितना बड़ा हूँ और मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, इसमें वो समझ में नहीं आते। वो अपाइज लोग हैं साले, दिमाग से अपाइज है, कि जो ऐसे फायदा लेकर लोगों को डराने का काम करते। लोगों को डराने से कोई आदमी ऊंचा नहीं हो सकता, कोई आदमी की सियासत नहीं बन सकती। अरे ये काम करने वाला है। बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली के नर्ख में इजाफे से मुताल्लिक़ दी गई तजवीज़ की मसीहा और सनतकारों की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से होली जलाई गई। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की रियासती कमेटी की जानिब से मौसूला इत्तला के मुताबिक बिजली सप्लाई कंपनी ने 66,644 करोड़ रुपयों के नुकसानात की भरपाई के लिए बिजली के नर्ख में 37% यानी औसतन 2.55 रुपये फी यूनिट इजाफे की तजवीज़ दाखिल की। मुताल्लिका कंपनी की जानिब से बिजली के नर्ख में इजाफे की तजवीज़ मुकम्मल तौर पर रद्द की जाए। इस मतालबे पर रियासत महाराष्ट्र के सभी अजला से सनतकारों की मुख्तलिफ तंजीमों, किसानों, कंज्यूमर्स एसोसिएशन और कंज्यूमर्स की जानिब से 25 फरवरी तक हज़ारों की तादाद में एतराज़ात और तजावीज़ मुताल्लिक़ा कमीशन के पास दाखिल की गई हैं। बिजली के नर्ख में इजाफे की इस तजवीज़ के खिलाफ अवामी बेदारी के लिए 5 से 25 फरवरी के दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस, इजलास, मीटिंग्स ली गईं। बोर्ड्स, बैनर्स और हैंडबिल्स के अलावा फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और सोशल मीडिया के ज़रिए इसकी तशहीर की गई, लेकिन ये सब बेनतीजा साबित हुए। लिहाजा आज मसीहा और सनतकारों की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से नर्ख में इजाफे से मुतालिक दी गई तजवीज़ की होली जलाई गई। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन के सदर प्रताप हुगाड़े ने मुतालबा किया कि हुकूमत ज़िमन में संजीदा हो जाए और इस तजवीज़ को फौरी तौर पर रद्द करे। इस मौके पर मसीहा के साबिक सदर संतोष कुलकर्णी, सुनील भोसले, नारायण पवार, मौजूदा सदर किरण जगताप, नायब सदर अनिल पटेल और दीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। आमची मागणी अशी आहे की ती वाढच नाही, आता सध्याचे जे इलेक्ट्रिसिटी रेट जे आहे त्याच्यात आम्हाला कसं काही कमी करता येईल, ते गुजरातच्या लेवलला कसं आणता येईल याच्यासाठी आम्ही भांडतोय। आणि मी मागे पण आमचं देवेंद्र फडणवीस साहेबांबरोबर चर्चा आली आणि त्यांना आम्ही हे पण सांगितलं की ऑलरेडी आपण जवळजवळ 40-50% आपली इलेक्ट्रिसिटी जी आता सध्याची आहे त्याची आपली ऑलरेडी जास्त आहेत, आपल्याला त्याच्यात कसं कमी करता येईल, जे 30 ते 35% जे लॉसेस आता सध्या आहेत ते कसे कमी करता येतील आणि आपल्याला कशी चांगली पॉवर देता येईल यासाठी आपल्याला विचार करावा लागेल।
आमच्याकडे समजा आज जे कस्टमर असतील आम्हाला ते कधी वाढ देत नाहीत. आम्हाला कायम दरवर्षी सांगता की तुम्ही रेट कमी करा, तुम्ही टीओडी द्या, अशा प्रकारचं आम्हाला दरवर्षी तुम्ही बघितलं असेल तर आमचे रेट कमी करतो आम्ही आणि MSCDCLचे रेट वाढत चालले. तर हे एकदम चुकीचं आहे. तर मी संघटनेच्या मसियाच्या माध्यमातून तुम्हाला सांगू इच्छितो की ही वाढ तर रद्द झालीच पाहिजे, अजून कमी केली पाहिजे. याच्यामध्ये ही कधी झाली नाही तर आम्ही इंडस्ट्री बंद करणार आहोत. आम्ही इंडस्ट्री चालवणार नाहीत कारण आम्हाला ती परवडणार नाहीत. त्याच्यामुळं मी शासनाला तुमच्या माध्यमातून विनंती करेल की याची दखल आपण घ्यावीत, नाहीतर फार चुकीचा मेसेज इंडस्ट्रीमध्ये जाईल आणि इंडस्ट्री व्हायबल होणार नाहीत. तर आपण त्याच्यासाठी लवकरात लवकर निर्णय घ्याल अशी अपेक्षा करतो. सरकारी काम में रखनांदाजी और पुलिस के साथ तू तकरार के मामले में उस्मानाबाद की अदालत ने रियासती वजीर ममलिकत बच्चू कड़ू और दीगर 4 अफराद को बरी कर दिया. इस मुकदमे में बच्चू कड़ू के साथ दीगर अफराद प्रहार संगठन के उस्मानाबाद जिले के सदर मयूर काकड़े, बलराज रंजवे, बाला साहब कस्बे और चंद्रकांत जाधव को भी मुलजिम करार दिया गया था. इतलात के मुताबिक साल 2015 में ये लोग बच्चू कड़ू की क़ियादत में माजूर अफराद की जानिब से एक मकतूब पेश करने उस्मानाबाद के जिला परिषद CEO के दफ्तर गए थे और इस दौरान बच्चू और दीगर मजकूरा अफराद की पुलिस के साथ कहासुनी हुई थी और उन अफराद पर सरकारी काम में रखनांदाजी व पुलिस से उलझने का मुकदमा दर्ज किया गया था. अदालत में दाखिल करदा चार्जशीट पर समाअत जारी थी और हिंगोली के वकील JS पठान ने इस मुकदमे की कामयाब पैरवी की और अदालत ने उन्हें जुज़वी तौर पर अदालत ख़त्म होने तक बिठाकर रखने की सज़ा दी और 2500 रुपये का जुर्माना आयद करके उन्हें इस मुकदमे से बरी कर दिया. बच्चू कड़ू ने अपने वकील JS पठान का शाल नारियल देकर इस्तकबाल किया और उन्हें नेक ख्वाहिशात पेश की हैं. पैकी उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये आमचं आंदोलन केलं. आंदोलनात साधी मागणी होती, थोडी आवाज झाला आणि त्यामध्ये काही बाचाबाची झाली असं म्हणून आमचा उलट गुन्हा खोटा रिपोर्ट दाखल केला आणि त्याच्यात आम्हाला 353 दाखल झाला आणि त्याची केस 2015 ते आत्ता 2023 पर्यंत आमचे पठाण साहेब वकील असेल, विजयजी राऊत असेल, शिंदे साहेब असेल, मांडळ साहेब असेल, या सगळ्यांनी ते लढली आणि आज आम्हाला इथं निर्दोष त्याच्या सुटका झाली. त्याच्यात सिंहाचा वाटा वकील साहेबांचा आहे. अतिशय चांगलं ॲग्रीमेंट त्यांनी केलं पठाण साहेबांनी सुद्धा आणि यामध्ये आता निर्दोष झालो. पण अधिक 2,500 दंड मात्र आमच्या मारला गेला. गोलवाड़ी इलाके में समाज मंदिर के लिए ज़मीन दिए जाने के मतालबे पर पैंथर्स रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया. अयां रहे कि मज़कूरा बस्ती में समाज मंदिर के लिए दलित बस्ती सुधार योजना 2019-20 के तहत मंजूरी दी गई थी और समाज मंदिर के लिए गैरान ज़मीन गट नंबर 79 में 200 मुरब्बा मीटर ज़मीन के हिस्सों के लिए यहाँ सरपंच ग्राम सेवक गोलवाड़ी से 12 नुमाइंदगी और दरख्वास्त दही भी की गई. और जब ये मामला किसी भी तरह हल न हुआ तो आज इस एहतजाज का रुख अपना कर पैंथर्स रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से जिला कलेक्टर दफ्तर पर शदीद मुजाहरे किए गए. इस मौके पर पार्टी के मराठवाड़ा सदर सरजय राव मनोरे, अनिल मगरे, जिला सदर संजय सातपुते, खवातीन अघाड़ी की सदर पंचशीला खोबरागड़े, जिला सदर सिद्धार्थ भिसे, संजय जीने और दीगर कारकुनानों कसीर तादाद देही साकिनान मौजूद थे. वर्षाला वारंवार त्यांना पत्रव्यवहार सगळं करूनही त्यांनी आम्हाला आतापर्यंत जागा दिली नाही. त्याकरिता आम्ही पॅंथर्स वाटेने धरणे आंदोलन करीत आहोत. याच्या पुढे जरा त्यांनी आम्हाला जागा नाही दिल्या आम्ही भव्य औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये आंदोलन छेडली. MP इम्तियाज़ जलील ने गुज़िश्ता शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और औरंगाबाद व उस्मानाबाद इन अजला के नाम तब्दील करने से मुताल्लिक़ हुकूमत के फैसले पर अपने तासुरात बयान किए. सोशल मीडिया के ऊपर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हिंदू और मुसलमानों का मुद्दा है, तो नहीं है. मैं आपको फिर से एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये जितने भी महापुरुषों के नाम लिए हैं हम उनका पूरी तरीके से आदर करते हैं, आगे भी करते रहेंगे. उसमें हम इनको बहुत मानते हैं, लेकिन इनके नाम के ऊपर कभी हम राजनीति नहीं करेंगे. अब तुमको अगर सही मानों में इनके बारे में अगर दिल में ज़रा सी भी जगह है तो इन 4-5 शहरों के भी नाम का प्रस्ताव आप लेके आ जाइएगा. आपकी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है और हमें यकीन है कि इसका कोई विरोध नहीं करेगा. हमारे 2 आमदार हैं, वो दोनों आमदार भी इसका समर्थन करेंगे. कांग्रेस वाले NCP वालों ने है तो खुलकर आए हैं कि संभाजी नगर का हम औरंगाबाद का समर्थन करते हैं. कांग्रेस और NCP भी इसके लिए कोई विरोध नहीं करेगा करके
अब नाम बदलना ही है, तो अब सब अच्छे अच्छे महापुरुषों के नाम के ऊपर शहरों के नाम रखते हैं। देखिए मैंने इसके बारे में मीटिंग लिया है, 2 मीटिंग्स मेरे अभी इससे पहले हुए हैं। हम ये है कि हम कभी ना हमने अलग अलग मुद्दों के ऊपर रास्ते के ऊपर आए हैं, हमने मोर्चे निकाले हैं, हमने आंदोलन किए हैं। मैंने अपने लोगों से राय मशवरा लेने की कोशिश किया है। किसी ने कहा है कि हम बंद मनाएंगे, किसी ने कहा है कि हम मोर्चा निकालेंगे, किसी ने कहा कि हम ग्राउंड के अंदर एक बड़ी सभाएं लेंगे, किसी ने कहा है कि हम 1 महीने तक पूरा है तो रिले हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठेंगे, किसी ने कहा कि काले झंडे अपनी अपनी गाड़ियों के ऊपर लगाएंगे। तो ये सुझाव आए हैं। अब इसके ऊपर हम जो पार्टी की जो कोर कमेटी है वो बैठेगी और उसके ऊपर चर्चा करके हम यकीनन ये बताएंगे कि हम इन फैसलों से नाराज है। हम छत्रपति संभाजी महाराज के बिल्कुल विरोध में नहीं है, पूरी तरीके से हम उनका आदर करते हैं, लेकिन इसको कोई जातिवादी मुद्दा ना बनाए। दूसरा, मैं आपके जरिए तमाम नौजवानों से, चाहे वो किसी जात धर्म और मजहब के हो, आप सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी कोई पोस्ट नहीं डाले जो किसी महापुरुष के विरोध में जाती है। मुझे आज बताया गया है कि किसी कॉलेज के अंदर कोई एक मुद्दा हुआ है करके। मैं वो नौजवानों से भी अपील करना चाहूँगा कि अपना शहर है, अपना ज़िला है, ठीक है ये हुआ है, आप इससे नाराज़ होंगे, खफा होंगे, लेकिन उसको एड्रेस करने के दूसरे रास्ते हैं। हमारे को इस शहर के अंदर अमान, शांति, भाईचारगी जो है वो बनाए रखने का है, क्योंकि मेरे को और आपको सबको साथ में रहने का है। तो ऐसी कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट ना डाले कि जिसकी वजह से समाजों के अंदर या उसके ऊपर कोई लोग एग्रेशन के अंदर आके गलत तरह की बयानबाजी करे करके। देवनी के मज़ाफ़ात वलांडी में रामचंद्र पाटिल इंग्लिश स्कूल की सालाना गैदरिंग मुनक़िद की गई, जहां स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ़ कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए और अंधी तकलीद व तोहम परस्ती के ख़िलाफ़ एक खूबसूरत ड्रामा प्ले करके हाज़रीन से दाद वसूल की। कोरोना के हालात के सबब पड़े ताअत्तुल और रुकावट के बाद स्कूल के इस पहले प्रोग्राम को खूब हिमायत और पसंदीदगी हासिल हुई। वलांडी के रामचंद्र पाटिल अंग्रेजी स्कूल के सालाना गैदरिंग के प्रोग्राम में नन्हे नन्हे तलबा ने मुख्तलिफ गीतों पर बेहतरीन रक्स पेश किए और खूब दाद बटोरी। प्रोग्राम की सदारत साबिक रुकन असेंबली धर्माजी सोनकौड़े ने की। देवनी के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बोइनवार, केंद्र प्रमुख यलमटे कारले सर, वेंकट राव पाटिल, महेश बंग, जब्बार मोइन सर व दीगर मेहमानान खुसूसी इस प्रोग्राम में शरीक थे। कोरोना दौरानिया के बाद हुए इस पहले बड़े सकाफती प्रोग्राम में गाँव वालों और सरपरस्तान तलबा ने नहायत जोश व खरोश के साथ शिरकत की। मुख्तलिफ सरगर्मियों और रक्स व सुरूद के साथ साथ सूर्यभान रामचंद्र पाटिल की फिल्म मेरे ख्वाबों का स्कूल बड़े पर्दे पर दिखाई गई। साथ ही ड्रामा अंगात आला देव पुढ़े आकरा रुपये ठेव भी पेश किया गया, जिसके जरिए अंधी तकलीद व अकायद के खिलाफ बेदारी पैदा की गई। प्रोग्राम की निजामत यूसुफ नरोने ने की, जबकि प्रोग्राम की कामयाबी के लिए तमाम स्कूली तलबा, असातिज़ा व गैर तदरीसी अमले ने खूब मेहनत की। प्रियदर्शनी म्यूनिसिपल स्कूल में डिजिटल प्लस व रीडिंग फेयर प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, जिसका इफ्तिताह म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर सुनील डोंगरे के हाथों अमल में आया। वाज़ेह रहे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 3 स्कूल्स में डी मार्ट नामी सोसाइटी की जानिब से गुज़िश्ता 1 साल कबल कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी शुरू की गई। गुज़िश्ता 1 साल में इस प्रोग्राम के तहत इन तलबा को क्या पढ़ाया गया और उन्होंने क्या कुछ हासिल किया वो सीखा, इसके मुजाहरे के लिए डिजिटल प्लस और रीडिंग फेयर प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। प्रियदर्शनी म्यूनसिपल स्कूल में मुनक़िदा इस प्रोग्राम का इफ्तिताह म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर सुनील डोंगरे के हाथों किया गया। इस मौके पर कल्चरल ऑफिसर संजीव सोनार, शशिकांत ओवाड़े, डी मार्ट की सुपरवाइजर वैशाली मस्के और म्यूनसिपल स्कूल के असातिज़ा और तलबा मौजूद थे। डिजिटल प्लस प्रोग्राम क्या है, इससे मुताल्लिक़ डी मार्ट की वैशाली मस्के ने हाज़रीन को मालूमात फराहम की, जबकि कीर्ति साड़वे ने रीडिंग फेयर से मुतालिक तफसीलात से हाज़रीन को वाकिफ करवाया। इस नुमाइश में टीचर्स चरण कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर मॉडल, इनपुट और आउटपुट पार्ट्स के मॉडल्स रखे गए। इसी तरह मुख्तलिफ स्टॉल्स पर काइंडनेस रीडिंग लेटर, पूनम स्टॉल,
स्टूडेंट चरण, पोपट शो, बुक स्टोर जैसे खेल मुनक़िद किए गए। इस फेयर में सरपरस्तों और तलबा ने शिरकत करके फेयर में शरीक तलबा और असातिज़ा की काविशों को सराहा। तलबा और उनके सरपरस्तों की हौसला अफजाई के लिए इन खेलों में हिस्सा लेने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में डी-मार्ट की सुपरवाइजर प्रशा सोनी, संतोष थुटे, साबिर खान, छाया साड़वे, कीर्ति साड़वे, आकांक्षा जोशी, संजय ठोकड़ और दीगर स्टाफ मेंबरान ने अहम रोल अदा किया। मुलाजिमत की मियाद मुकम्मल हो जाने के सबब जोन नंबर 7 के असिस्टेंट कमिश्नर कमलाकर न्याते गुज़िश्ता रोज़ अपने ओहदे से सुबुकदोश हो गए, लिहाजा म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन की जानिब से उन्हें पुरखुलूस विदाइया दिया गया। वाज़ेह रहे कि असिस्टेंट कमिश्नर कमलाकर न्याते ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपनी मुलाजिमत का आगाज़ सफाई इंस्पेक्टर की हैसियत से किया था और मुलाजिमत के दौरान वो मुख्तलिफ जोन दफातर में सोहदे पर काम करते रहे। उनकी आजिज़ी और मिलनसारी के सबब वो हर ख़ास व आम में मकबूल थे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजिमीन ही नहीं, शहरियान भी उनकी कारकर्दगी से खुश थे। उनकी गिरां कदर खिदमात को देखते हुए म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर ओहदे पर तरक्की दी और मुलाजिमत की मियाद मुकम्मल हो जाने पर वो गुज़िश्ता रोज़ सबुकदोश हो गए। उनके लिए रखी गई विदाइया तकरीब में रिटायर्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर नाना खांदेवाले, असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश आठोले और रिटायर्ड सफाई इंस्पेक्टर सुरड़कर ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सीनियर क्लर्क दत्तात्रेय किनीकर ने प्रोग्राम का तारुफ पेश किया और जोन के सभी अफसरान और मुलाजिमीन ने कमलाकर न्याते से मुताल्लिक अपने तासुरात पेश किए और उन्हें मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के.एस. जाधव, N.P. विस्पुते, पल्लवी माकेंडे, उमा कुलकर्णी, सचिन तायडे, अकबर खान, सुदाम दुर्गुड़े, मच्छिंद्र मीर पगारे और दीगर मौजूद थे। आणि त्यांची कारकीर्द जवळपास 35 वर्षाची झालेली आहे। त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये त्यांनी खूप म्हणजे मेहनत घेऊन एवढी मेहनत घेतलेली आहे की सकाळी 5 वाजता उठून रात्री 8 वाजता ते घरी गेले आणि आता G20 मध्ये पण खूप त्यांनी मेहनत घेतलेली आहे आणि नियत वयोमानाने ज्यावेळेस सेवानिवृत्त व्हावं लागतं तर त्यांनाही म्हणजे आज भावना होत आहे की त्यांना आता एवढ्या लोकांना सोडून जायचं म्हटलं की त्यांनाही ते म्हणजे कसं तरीच होत आहे। आणि आपल्या आज इथं आले प्रमुख पाहुणे म्हणून खांदेवाले साहेब आहेत, आपले वार्ड ऑफिसर आठवले साहेब आहेत, सुरडकर साहेब आहेत आणि जमलेले सर्व कर्मचारी आहेत। G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए 7 हिल फ्लाईओवर ब्रिज पर AMC इंतज़ामिया की जानिब से रखे गए सीमेंट और प्लास्टिक के कुंडों को एक तेज़ रफ्तार कार ने टक्कर दे दी। इस तरह की शिकायत गार्डन सुपरिटेंडेंट की जानिब से जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। 7 हिल पर तज़यीन व आराइश और शहर की खूबसूरती के लिए रखे गए सीमेंट और प्लास्टिक के कुंडों को कार ने टक्कर मारकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का नुकसान किया, जिस पर कॉरपोरेशन की जानिब से जवाहर नगर पुलिस थाना में लिखवाई गई शिकायत में वजाहत की गई है कि G20 के पेश नज़र की गई तज़यीनकारी के कामों के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबा बागात की जानिब से मुख्तलिफ काम अंजाम दिए गए, जिसमें 7 हिल फ्लाईओवर के ऊपरी रास्ते के डिवाइडरों की खूबसूरती के लिए खूबसूरत व आराइशी पौधों के सीमेंट और फाइबर के मुख्तलिफ कुंडे सजाए गए हैं। आज 1 मार्च को एक मारुति अल्टो कार MH20 EY 0194 के ड्राइवर ने अपनी कार से इन कुंडों को टक्कर मारकर इन कुंडों में से 8 बेशकीमत कुंडे तोड़ दिए और मौके से फरार हो गया। कारपोरेशन के गार्डन ऑफिसर की जानिब से जवाहर नगर पुलिस थाना में शिकायत लिखवाई गई और इन कुंडों की कीमत 82,984 रुपये की वसूली करके मज़कूरा रकम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिका शोबे में जमा करवाने की दरख्वास्त की गई है। वालिदैन ने पढ़ाई के लिए तंबीह की तो नाराज़ होकर 11वीं जमात के एक तालिब इल्म ने फांसी लेकर ज़िंदगी ही से मुंह मोड़ लिया। ये मामला जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। ये अफसोसनाक वारदात शहर में जवाहर नगर के स्वानंद नगर इलाके में पेश आई। महलूक तालिब इल्म का नाम अमोल शार्दुल शंकर कोपलकर बतलाया गया है। अमोल देवगिरी कॉलेज में 11वीं जमात का कॉमर्स का तालिब इल्म था और कुछ अरसे से स्टडी में उसका ध्यान न था, जिस पर उसके वालिद ने उसे फटकारते हुए डांट डपट की थी और इस डांट फटकार से अमोल निहायत दिल बर्दाश्ता हो गया और गुस्से में आकर उसने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान ही दे दी। अहले खाना को जब वारदात का पता लगा तो पड़ोसियों की मदद से उसे फंदे से नीचे उतार कर फौरी घाटी अस्पताल ले जाया
लाया गया। ताहम अमूल को डॉक्टरों ने मुर्दा करार दे दिया। महलूक तालिब इल्म ने खुदकुशी से कबल एक चिट्ठी भी लिख छोड़ी थी जिसमें उसने लिखा था कि उसका स्टडी में मन नहीं लगता है और उसके वालिद उस पर गुस्सा करते हैं। तालिब इल्म की खुदकुशी का ये मामला उन वालिदैन के लिए दावत बेदारी देता है जो तालीम, स्टडी या किसी भी और वजह पर भी ज़रूरत या हद से ज़्यादा अपने बच्चों पर सख्ती करते हैं या उन्हें सख्त सुस्त कहकर ज़हनी तौर पर टॉर्चर करते हैं। गुज़िश्ता शाम सिल्लोड़ में एक दिलखराश हादसा पेश आया। कोचिंग क्लासेस से घर लौटते वक्त एक 15 साला तालिब इल्म की इस हादसे में अफसोसनाक मौत हो गई। महलूक तालिब इल्म का नाम महेश कौतिकराव ताज ने बतलाया गया है। वो अपनी मोटरसाइकिल MH20 BB 1234 पर शहर सिल्लोड़ में एक खानगी कोचिंग क्लास को जाया करता था। गुज़िश्ता रोज 28 फरवरी को महेश हस्ब मामूल क्लास से वापस आ रहा था कि सुबह 9 बजे के करीब शहर में जलगांव औरंगाबाद हाईवे पर शिवसेना भवन के सामने एक तेज रफ्तार आइशर ट्रक से उसकी मोटरसाइकिल टकरा गई। हादसा निहायत शदीद था जिसमें महेश की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। इत्तला मिलते ही सिल्लोड़ शहर पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और आइशर ट्रक को अपनी तहवील में ले लिया। ज़रूरी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद यहाँ शिवाजी हाई स्कूल के करीब वाक़े शमशान भूमि में इस तालिब इल्म की आखिरी रसूम अदा कर दी गई। शहर भर इस नौउम्र तालिब इल्म की मौत पर इजहार तासुफ किया जा रहा है। सिल्लोड़ के खंडाला में अजंता पुलिस ने छापा मारा और हज़ारों रुपये मालियत की गैर कानूनी बोतलबंद देसी शराब जब्त कर ली। 2 अफराद के खिलाफ मामला भी दर्ज करने की इत्तला है। अजंता पुलिस ने अपनी हुदूद के मज़ाफ़ात खंडाला में गैर कानूनी शराब बिक्री की खबर मिलने पर यहाँ 2 मकामात पर छापामारी की और तकरीबन 5,460 रुपये मालियत की देसी दारू से भरी 78 बोतलें जब्त कर ली हैं। ये कार्रवाई पुलिस थाना के API प्रमोद बिंगारी की रहनुमाई में PSI राजू राठौड़, हेड कांस्टेबल अकरम पठान, संदीप कोथलकर और होमगार्ड ज्वाला सिंह पर मुश्तमिल स्क्वाड ने अंजाम दी। मज़कूरा दोनों मकामात के मुलजिमीन 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गए हैं। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।